Class, we will go through least squares regression a little bit, and then we will move on to contribution format, and after that we will talk about some decision making tools regarding contribution format. So least squares regression, let me refresh your minds. Least square regression is a statistical technique. Why is it called as least squares? It is called as least squares because the difference between the fitted line and the actual points, the squared differences, the sum of the squared differences is least. That's why it is called as least squares regression. So basically, regression is finding out relationship between two variables. What are the two variables? X and y. When this variable changes, it will change this way. That's why it is written as y equals a plus b x. So this is my independent. When this variable changes, this will change. Okay? ये भी हो गया. अब जाते हैं कि हमने तो इसके लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लिया, और सॉफ्टवेयर में we found out something which is called as r square or rsq. Excel के अंदर rsq. R square. Now what does r square mean? First of all, you need to know that the value of r square would be between 0 and 1. इसके दरमियान होगा. The higher the value, the better it is. जितनी ज़्यादा value होगी उतनी अच्छा होगा. यानी अगर 0.9934 आ रहा है, so it's a good value. If it is 0.421, then this value is better than this one. So R2 varies from 0% to 100%. 0% का मतलब 0, 100% का मतलब 1. ठीक? And the higher the percentage, the better. जितना ज़्यादा उतना अच्छा. अब ये बताता क्या है? जी. सर आपने कहा था कि ये जो पॉइंट्स हैं इनमें से ये लाइन एक से इंटरसेक्ट करेगी, राइट? हाँ. सर ये दो हमने कहा it must touch, it can touch as many points as possible. लेकिन वो स्कैटर ग्राफ में लेता है. This is for R square. इसमें आपने फिट नहीं करना, इसमें खुद ब खुद फिट हो जाता है. इसमें जब ये आप मेथड करते हैं ना सॉफ्टवेयर में, तो ये खुद ब खुद फिट करके आपको दे देगा. ठीक? Okay. So now this is about R square. और R square क्या शो करता है? It is the percentage of the variation in total cost explained by the activity. Now let's have a look at this again. So that means this percentage, whatever is the answer of R square, जो भी आंसर आपके पास आया, वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि इसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है, that is due to this variable, है ना? ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा ना? हम ये कहते हैं. तो इसका change in y is due to change in x. अब जब change in x होता है तो उससे change in y होता है. ठीक है? अब क्या सारा change in y x की वजह से है? नहीं. कुछ और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो यहाँ पे नहीं लिखे. फॉर एग्जांपल b2x2 मैंने नहीं लिखा, b3x3 और आगे में एक एरर टर्म ये भी नहीं लिखा. So there are lots of variables, there are lots of reasons जो कि इस इक्वेशन के अंदर नहीं आ रहे. तो इसका मतलब ये है कि r square मुझे ये बताता है कि whatever is the answer, let's say 0.42. So that means 0.42 is equal to 42%. So that means 42% of the variation in y is due to the variation in x. और y हमने कहा था टोटल कॉस्ट होगा ज्यादातर या मिक्स कॉस्ट होगा, और ये कोई एक्टिविटी होगी. ठीक? तो इसका मतलब 42% change in mixed cost or total cost is due to the change in this. Got the idea? Got the idea? Yes, sir. Okay. अब गौर से देखिएगा स्कैटर ग्राफ. हमने कहा था स्कैटर ग्राफ कम से कम कितने पॉइंट्स को टच करे? एक को. So that means scatter graph takes into account only one point. High-low method. High-low method हमने क्या कहा था? कितने पॉइंट्स आप लेते हैं? दो. High, low. So it takes into account 2 points. Least square is the best method. Why? Because it takes all the points in account. क्यों? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर आपसे कहा कि हर पॉइंट और लाइन के दरमियान जो डिफरेंस है वो सब लें, उसको स्क्वायर करें, उसका सम लें, उसको स्क्वायर करें, उसका सम लें, और ये सम सबसे कम होगा. So that's why least square regression line is the line of the best fit. ये सबसे अच्छी लाइन. Got the idea? Yes, sir. Okay. So this is all about least square regression. Now let's move on to contribution format.
ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक। और क्विज में भी मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि ये क्या होता है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। व्हेनेवर वी हैव सेल्स and we subtract variable cost from it, we get contribution margin. इसके बाद जो आता है वो contribution margin होता है। It can be calculated as in total or it can be calculated per unit as well. अगर आपके पास per unit selling price हो और per unit variable cost हो, तो उसमें से उसको माइनस कर दिया आपके पास आ जाएगा per unit contribution margin. Contribution margin क्या शो करता है? Contribution margin is telling you about cost behavior. फिक्स्ड और वेरिएबल, जो फिक्स्ड है उसको नीचे लिख दें, जो वेरिएबल है उसको ऊपर लिख दें। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट इज टॉकिंग अबाउट कॉस्ट बिहेवियर। और फिर वो क्या करता है, वो बताता है कि कितने पैसे आपके पास हैं कि आप कवर कर सकें अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को, और उसके अलावा भी आपके पास 10,000 रुपए एक्स्ट्रा भी हैं। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन would tell you about the amount that is available to cover the fixed cost in any additional amount which is left. सही है? Contribution format में 40,000 आपकी fixed cost है 30, so contribution format would cover this 30, फिर भी 10 बच जाएगा, वो 10 जो बच जाएगा वो आपका प्रॉफिट। तो contribution margin पहले कवर करता है fixed cost को, और जो बच जाए वो हो जाता है आपका प्रॉफिट। Is this thing clear? Is this thing clear? कंट्रीब्यूशन मार्जिन इस सब चीजों में इस्तेमाल होता है, और ये सब चीजें हमने मिड टर्म की बात करी, ठीक है? ये सब चीजें हमने मिड टर्म की बात करी। ये शॉर्ट ऑफ 2 चैप्टर्स जो कि इस टर्म में करना था लेकिन नहीं कर सके, तो इसका मतलब ये कि मिड टर्म के बाद वो 2 ही करते। और फिर मुझे मुश्किल लग रहा है कि सारा हो सके, सो वी विल स्किप फ्यू पार्ट्स, ठीक है? हम फिर पार्ट्स को स्किप करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे अपनी स्पीड तेज रखें एग्जाम के बाद इंशाल्लाह। ठीक, okay, move on. Okay, comparison of the contribution income statement with the traditional income statement. Now, you remember the traditional income statement. Traditional income statement में क्या होता है? Sales minus CGS would give you gross profit minus operating expenses. और हमने कहा operating expenses 2 किस्म के होंगे, general and admin, selling and marketing. और जब ये माइनस हो जाए, you will get net operating income. इसका दूसरा नाम होता है earning before interest and tax. इसके बाद फिर interest माइनस होगा, तो earning before tax आ जाएगा, फिर tax माइनस होगा, so you will get earning after tax or net. Clear? Clear? Yes sir. अब आ जाएगा CGS. CGS किन चीजों से बनी हुई है? CGS 3 चीजों से बनती है। हाँ, कौन सी 3 चीजों से? डायरेक्ट लेबर, मटेरियल। देखिए आपसे पहले क्या था, स्टार्ट विद डायरेक्ट मटेरियल। यस सर, डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल जी अगर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ओके, डायरेक्ट लेबर एंड फाइनली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑफ फैक्ट्री। यस सर, ये भी हो गया। डायरेक्ट मटेरियल, फिक्स्ड और वेरिएबल? वेरिएबल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड और वेरिएबल? पाकिस्तान की बहुत ये फिक्स है, वेरिएबल है, दोनों आपको क्या कहा था कि हमारे कोर्स में ये क्या होगा? वेरिएबल। कैपिटल इकोनॉमीज वेरिएबल, ओके। एफओएच मिक्स कॉस्ट है, सो दैट मींस वेरिएबल एंड फिक्स्ड। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं अपना फॉर्मेट चेंज करूं एंड आई मूव ऑन टू द कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और इस वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट कौन सी आ जाएगी? डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड डायरेक्ट लेबर, थर्ड एफओएच का कौन सा पोर्शन? वेरिएबल पोर्शन। सो वेरिएबल एफओएच हो गया, माइनस करें ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, माइनस जनरल एंड एडमिन, नेचर जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस, नेचर बिहेवियर, कॉस्ट बिहेवियर क्या है? फिक्स्ड वेरिएबल। ये सर वेरिएबल वो है सर, सेलिंग जनरल जनरल फिक्स हो गया वेरिएबल, सेलिंग एंड जनरल एडमिन जनरल फिक्स फिक्स्ड
सिर्फ सैलरी है Sir, administrative cost. फिक्स्ड मिक्स तो नहीं है सर फिक्स्ड है सैलरी फिक्स हो गई ठीक है एडमिन वाला ऊपर बैठा हुआ है ना एडमिन उसकी सैलरी फिक्स है यस सर वो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं Yes. टेबल चेयर कंप्यूटर यस इसकी कॉस्ट क्या हो गई इसके ऊपर कौन सी कॉस्ट आती है Sir, period cost. कॉस्ट का नाम है वेरिएशन नेचर पूछ नहीं रहा कॉस्ट का नाम वो नेचर नाम Sir, non-manufacturing cost. नॉन मैन्युफैक्चरिंग तो है वो तो उसका नेचर है उसका नाम है इक्विपमेंट इक्विपमेंट शाजिब डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट पे हमेशा डेप्रिसिएशन होता है और डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स होता है ओके वो भी फिक्स हो गया फिर इक्विपमेंट पड़ा हुआ है ना उसके पास इक्विपमेंट कहां से इस्तेमाल करेगा इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट क्या होती है Sir, वो तो variable. variable so that means general and admin is also a mixed cost that means fixed general and admin variable general and admin सही हो गया अब आ जाए नीचे selling and marketing selling and Mixed है, sir, marketing mixed. Wajia says mixed Fahim says mixed Shamil says mixed Asad mixed Sadiqa says variable mixed होती है क्यों और से देखिएगा वंस अगेन सैलरी अब इसके अंदर जो सैलरी होती है ना सेल्स पीपल की वो भी मिक्स होती है क्यों क्योंकि उन्हें कुछ पैसे हम फिक्स देते हैं ये लो 5 फिर उन्हें कहते हैं जितने यूनिट्स बेचोगे उतना कमीशन मिलेगा वेरिएबल हो गया Bonus. तो उसकी सैलरी भी फिक्स हो गई ठीक है फिर फिक्स नहीं है ठीक है फिक्स हो गई जहां पे कि वो बैठा हुआ है उसकी डेप्रिसिएशन वो भी कंप्यूटर इस्तेमाल करता है वो भी डेस्क इस्तेमाल करता है वो भी जिस जगह बिल्डिंग में बैठता है उसकी डेप्रिसिएशन या रेंट फिक्स लेकिन उसका इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल उसकी सैलरी मिक्स सो वंस अगेन सेलिंग एंड मार्केटिंग इज अ मिक्स कॉस्ट फिक्स्ड सेलिंग एंड मार्केटिंग और साथ ही वेरिएबल अब आ जाएंगे अब वेरिएबल यहां पे ये तीन आ गई कौन कौन सी वेरिएबल रह गई So variable, general and admin भी इधर आएगा. Variable, selling and marketing. You subtract all these, you will get contribution margin. Then you subtract fixed cost. Fixed यहाँ पे कौन सी आएगी? Fixed FOH, fixed general and admin, fixed selling and marketing. And when we subtract all, I will get net operating income. Remember, these two must be equal. लेकिन ये तो इक्वल नहीं होंगे ये तो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते मुझे नहीं पता शायद हो जाए डेटा ऐसा शायद ना हो I don't know but these two must be equal okay got the idea दोनों चीजें क्लियर हो गई now let's have a look अब यहाँ पे देखिए sales 100,000 sales दोनों केसेस में would be same sales तो सेम होती है 100,000 less cost of goods sold 70,000 अब इसके अंदर तीन चीजें डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर फिर दो चीजें ठीक है ओके सो लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस ये सारे वेरिएबल इसने इकट्ठे कर दिए सारे 60,000 सो ग्रॉस मार्जिन इसका 70 आ रहा है इसका 40 आ रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये वाले 20,000 सो 10,000 इज नेट ऑपरेटिंग इनकम यहां पे 30,000 10,000 दिस मस्ट बी सही है ये कहां पे इस्तेमाल होता है ट्रेडिशनल ये ट्रेडिशनल बना हुआ है गैप प्रिंसिपल से ठीक ये बना हुआ है आपका जो कंपनीज एक्ट होता है उससे सो दैट मींस दिस इज फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग वेयर कंपैरिजन इज पॉसिबल ठीक है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग क्योंकि वो सब एक तरीके से बनते हैं हर कंपनी का चाहे एसएम की कंपनी है डूइंग समथिंग सेलिंग जूसेस ठीक है सुल्तान की कंपनी है सर्विस प्रोवाइडर है अब अगर कोई दोनों को मैच करना चाहे तो फॉर्मेट सेम होगा नेचर अलग है फॉर्मेट सेम होगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आपको दे रहा है लॉ ओके सो दिस इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग अब आ जाए यहां पर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग नहीं है दिस इज फॉर मैनेजरियल पर्पसेस तो इसकी रिपोर्टिंग अलग तरीके से हो सकती है कोई कहता है इसको ऊपर कर दो इसको नीचे कर दो कर देंगे आपका मैनेजर कह रहा है भाई मुझे इस सब का अलग अलग डिटेल दो आप कर देंगे एक्सटर्नल के लिए नहीं है इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए मैनेजमेंट पर्पसेस के लिए सो
This is for management purposes, which is internal report. Okay, is this thing clear, class? Yes, sir. Is this thing clear? ट्रेडिशनल जो है सर ये दोबारा समझा रहे हैं। ट्रेडिशनल दोबारा समझा दें। ट्रेडिशनल में क्या चीज आपको समझ नहीं आ रही? Okay, so let's talk about traditional again. So this is traditional format where we have sales minus CGS. CGS तीन चीजों से बनता है, direct material, direct labor, FOH. इसमें direct material variable, direct labor variable, FOH fix. इसमें कुछ portion variable, कुछ portion fix. This gives you gross profit. Gross profit के बाद you need to subtract operating expenses. Operating expenses दो किस्म के, general and admin, selling and marketing. General and admin once again mix, selling and marketing mix. इसमें fix भी है, variable है, इसमें भी fix है, variable दोनों. So this gives you net operating. ये है आपका ट्रेडिशनल फॉर्मेट जो अब तक आप पढ़ते हैं. लेकिन अब from this point onward हम जो भी एनालिसिस करेंगे विल बी यूजिंग कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट. तो ये आपको जरूर आना चाहिए, वो भी जरूर आना चाहिए, लेकिन ये मेरे कोर्स में जरूर आना चाहिए बिकॉज वी विल बी यूजिंग दिस वन. दिस शुड बी एट योर फिंगर टिप्स. आपको याद होना चाहिए ताकि गलती ना हो. क्लियर? क्लियर? यस सर। Okay, let's move on. Cost, volume, profit relationship. Cost, volume, profit. सही? तीन चीजें. Cost, volume, profit. इन तीनों का आपस का रिलेशनशिप. सही? Okay. Continue. Now, cost, volume, profit analysis is also called as CVP. आपने पहले CVP कहीं पे पढ़ा है? नाम सुना है? नहीं पढ़ा? ब्रेक इवन का नाम सुना है? Yes, sir. This is break. ना profit. इसका आसान नाम है ब्रेक इवन. टेक्निकल नाम from the point of view of management accounting is cost, volume, profit analysis or CVP analysis. So that means this first portion regarding break even would be easy for you क्योंकि आपको ब्रेक इवन का आइडिया है ना, तो ये आप आराम से कर सकते हैं. Now ये क्या बताता है? ये इन तीन चीजों के आपस का रिलेशनशिप बताता है कि कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट का आपस का रिलेशनशिप क्या है. ठीक है? CVP would be telling you about this relationship. So it is very widely used in accounting, in managerial accounting. बहुत जबरदस्त टूल है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. You can make lots of decisions on it. Extension के decision, dropping के decision, जो भी आपने करना है आप CVP देखते हैं कि आप ब्रेक इवन पर हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप लॉसेस कर रहे हैं. So that's why it is an important Sir, tool. volume refers to the units. Exactly. Volume का मतलब है number of units. Cost का मतलब है कि कॉस्ट कितनी है और प्रॉफिट का मतलब है कि उस वॉल्यूम को सेल करके उस कॉस्ट पे आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं. और जब ये प्रॉफिट जीरो हो जाए देन वी से वी आर एट Break even. ब्रेक. Loss to discuss CVP. यस सर। लॉस भी होता है, ठीक है, लेकिन बेसिकली आपने देखना होता है ब्रेक इवन को. ये ब्रेक इवन कहां पर है? फिर आप देखते हैं उस ब्रेक इवन पे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं. तो फिर आप कहते हैं अच्छा इतने यूनिट्स बेचूंगा तो ब्रेक पे आ जाऊंगा, फिर इससे ज्यादा बेचूंगा तो फिर प्रॉफिट कमाना शुरू करूंगा, और इससे अगर कम बेचे तो लॉस. तो आपके दिमाग में होता है यार कम से कम 6 स्प्रेज बेचने हैं, ये बेचूंगा तो ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा, इसके बाद जितना भी बेचा प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट कमाना शुरू करूंगा. ठीक है? सो दैट्स व्हाई CVP इज सर इंपॉर्टेंट. ये बुक में जो ये चैप्टर है ये चैप्टर 5 है ना बुक के चैप्टर्स थोड़े से डिफरेंट है, वो जब मैं आपको असाइनमेंट देता हूं तो मैं साथ साथ बुक के चैप्टर के नाम लिख देता हूं. ठीक है? किसमें? स्लाइड्स में चैप्टर नंबर 6 है और बुक में अब तक जो हम पढ़ रहे हैं वी आर स्टिल इन द फर्स्ट चैप्टर. वी आर स्टिल इन द फर्स्ट चैप्टर. सो बुक के हमने सिर्फ 2 चैप्टर्स किए. स्लाइड्स के 1, 2 एंड 5 तीन किए. ठीक है? 3 और 4 स्किप किए थे ताकि वो बाद में करेंगे लेकिन हम उसमें पहुंच नहीं सकते. बुक के कौन कौन से चैप्टर है फिलहाल तक so far prologue that is the first chapter से पहले prologue and chapter number 1 so far तक ये 2 चैप्टर बस. और आज हम ये करेंगे, ये चैप्टर आपको जब वीकेंड पे बताऊंगा आपको तो लिख दूंगा कि ये कौन सा चैप्टर. ओके लेट्स फाइंड आउट. यही ना हाँ एग्जैक्टली. ओके let's find out how changes in activity affect contribution margin and net operating income. अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. ठीक है? ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? लेट्स फाइंड आउट. मैं सबको रब आउट कर रहा हूं, रब कर दूं. Yes, sir. ओके
So I'm going to rub this whole thing. कम से कम इसको दो डालता हूँ ना. Okay. ये दो रहने दें, ये formats हैं, ये दो. Okay, let's start. So we have a company called Racing Bicycle, and this is the contribution income statement for the month of June. Sales आप कितने कर रहे हैं? 500 bikes. तो अगर आप 500 bikes बेच रहे हैं और आपकी sale जो है this is 250,000. So what is the selling price per unit? 250,000 को divide by 500 करेंगे. तो करके मुझे दे दें. करके दे दें मुझे. ताकि मैं लिख दूँ यहाँ. Okay. So how do you find out? 250,000 500. divided by 500. So this is the per unit figure. ठीक है? कि per unit selling price is 500. आगे चलें. Less variable expenses. 150,000. अब आपने बाइक्स कितनी बेची? 500. उन बाइक्स को बेचने के लिए आपने एक्सपेंस किया जो वेरिएबल था. कितना था? 150. तो एक बाइक का वेरिएबल एक्सपेंस कितना होगा? 150 divided by 500. करें. 150,000 divided by 500 would give you per unit 300. 300. So per unit variable cost is 300. Unit per unit variable cost. Variable cost per unit 300. अब अगर ये 300 आ गया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना बचेगा? 500 minus 300 equals. क्लियर हो गया? टोटल में देखें 250 minus 150 100,000 और आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं? 80,000. अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या कहता है कि ये फिगर will be used to cover this expense, fixed expense, which is how much? 80. 100,000 will be used to cover 80,000. 80,000 सारा कवर हो जाएगा? Yes, sir. हो जाएगा. Will I have something extra? Yes, sir. Yes. How much? 20. 20. So 20 will be your net. So contribution margin is the amount remaining from sales revenue after variable expenses have been deducted, and the contribution margin will cover fixed cost first, and then whatever is left will be. Got the idea? Got this idea? Yes, sir. Got this idea? Yes, sir. ठीक? ये आपको बता रहा हूं. दो चीज आपको बता रहा हूं. Okay, let's move on. Sales, variable expenses and contribution margin can also be expressed on a per unit basis, जो मैं already कर चुका हूं. कर चुका हूं? ठीक? So let's move on. Now each one, racing must generate at least 80,000 in total. अब देखिए, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं, रेसिंग बाइसिकल, और मेरे फिक्स कॉस्ट है 80,000. मैं जब भी चीजें बेचता हूं बाइसिकल बेचता हूं, so I would try and sell as much so that I am in a position to cover this 80,000. If I cover this 80,000, then my profit would be break even. देखिए, अगर मेरा contribution margin भी 80 हो, so I would actually be at a break even पे आ जाऊंगा ना, no profit no loss, break even पे आ जाऊंगा. तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जितना आपका फिक्स्ड कॉस्ट है उसको कवर करना Must है. जरूरी है, मस्ट है. कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो लॉस होगा. अगर कवर कर देंगे तो ब्रेक इवन, और अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर प्रॉफिट. गॉट दिस आइडिया? गॉट दिस आइडिया? Yes, sir. गॉट दिस आइडिया. अच्छा, अब सर मुझे बताएं, अब समझो, अगर ये 80,000 कवर करना है तो कितनी साइकिलें बेचोगे? Cycle. फाइंड आउट. अगर 80,000 करना है, ब्रेक इवन पर आना है, तो 80,000 को फिक्स कॉस्ट को कवर करना है. 80,000 की फिक्स कॉस्ट को कवर करना है तो कितनी बाइसिकल्स बेचनी है? 160. 160 160 160. 460 दूसरा कह रहा है 159. नहीं समझ आ रहा. सिद्दीक मरियम नहीं समझ आ रहा. सिंपल, ये तो सिंपल है सर. समझ आ गई मैं क्या बोलेगी? कैलकुलेट करें, हमारे ऊपर एहसान करें, कैलकुलेट और हमें बताएं. ओके, आप लोगों ने 160 बोल दिया है. 160 है सर. 160 जो कि गलत है.
Shahzeb keh raha hai 460. So we have two answers, 160 and 460. Any other answer? 160. Any other answer? Sir, No. ये पता है कि 160 लॉक कर दे, सबका गलत. Okay, let's see how. 160. पहले मैं 160 देता हूँ, फिर 460 देखूंगा कि वो तो बहुत ज्यादा है, तो पहले 160. Let's say I am selling 160. So that means I am getting sales of how much? 160 multiplied by 500. 80,000 की सेल्स करो. Okay? Variable expenses कितना है? 300 multiplied by 160. 48,000. 80 minus 48,000. 32. My fixed cost is 80. So that means I am in a loss. अगर आप मैनेजर बन गए इस कंपनी के तो ये कंपनी लॉस डूब जाएगी. क्या किया वो? दोबारा सीखेंगे 460 से सीखेंगे. Now Shahzeb is saying 400. ये पहले कह रहा था 460. 400. How about it? Everybody keep quiet. जी Akbar, how did you calculate? इसने क्या मतलब सर? How did you calculate? 80,000 divided by 200. So that's the genius of my class. Yes, sir. मैं आपको बता रहा हूँ मेरा क्लास का जीनियस वो नहीं होगा जो कि 4 CGPA होगा मोस्ट प्रॉब्ली. वो होगा जो एग्जाम के अंदर उस एक पर्टिकुलर पॉइंट को समझ जाए. और वो पास होगा कि नहीं? मुझे नहीं पता ना पास हो, मुझे इससे कोई बात नहीं. देखिए मुझे इस बात से सरोकार नहीं है कि आप यहाँ से डिग्री लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते. सिर्फ आप सीख के जाए. ठीक है? अगर इस तरह होता तो इतने बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी डिग्री नहीं है. बट दे नो. प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने खुद सीखा है और आपको मैं सिखा रहा हूं. आपके पास ये प्लस पॉइंट. ठीक? ओके, लेट्स मूव ऑन. सो नाउ द आईडिया इज कि 400 बेचने हैं. क्यों बेचने हैं? मुदस्सर कहता है कि ये सारे बोंगियां मार रहे हैं. आसान तरीका ये था 80,000. ठीक? डिवाइडेड बाय दिस फिगर 200. सो दिस गिव्स यू 400. ठीक है? 200 आपके पास यहाँ पे पर यूनिट बचा ना, तो 200 पर यूनिट बचा, तो अगर आप 400 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 80,000 ओवर हियर. ये 80 आ गया. 80 में से 80 को माइनस करें, दोबारा ऐड ब्रेक. गॉट द आइडिया? तो इसका मतलब ये कि ये फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको बड़ी चीजें बताएगी, आगे जाके देखेंगे और भी चीजें बताएगी. ये फिगर जरूरी है. सो इफ यू आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू मस्ट नो द कॉस्ट स्ट्रक्चर कि फिक्स किधर है और वेरिएबल किधर है और कितना कितना है. उसके थ्रू आप ये फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके थ्रू आप ब्रेक इवन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट. सही? क्लियर? Yes, sir. सर अब आगे चलते हैं. 200 के साथ क्यों डिवाइड करते हैं? डिवाइड नहीं किया, मैंने मल्टीप्लाई किया इसमें. 80,000 80,000 आपने पैसे पूरे करने हैं. फिक्स कॉस्ट पूरी करनी है. ठीक है? एक यूनिट आपको कितना कमा के देता है? 200 कमा के देता तो है 500, लेकिन 500 में से 300 रुपए कट जाते हैं क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट है. इसके ऊपर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच और बाकी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो लगे वो हटा दिए. बाकी लगे फिक्स को कवर करना जरूरी है. फिक्स को कवर करूंगा देन आई विल बी एट ब्रेक. अब इस फिक्स को कवर करने के लिए आपके पास हर यूनिट कितना कमा के दे रहा है? 200. टोटल आपने कवर करना है 80 और एक यूनिट कमा के दे रहा है 200. तो फिर कितने यूनिट्स बेचूं? 400 बेच दूं, 80,000 कवर हो जाएगा. जीरो. गॉट द आइडिया? अब एक और सुनो. अब अगर सेल को 400 से 401 कर, what will happen quickly in the year of for Nivas? 400 से 401 कर दूं. वो तो ठीक है, 80,200 आ जाएगा. यहाँ पर 80,200 आ जाएगा. कहाँ पर? यहाँ पर. ये कितना है? 200. तो इसका मतलब क्या हुआ? अब और से सुनो. आप लोग पहुंचे इस पॉइंट तक नहीं पहुंचे. सब पहुंच गए. वो बहुत तेज जा रहा है. बता सर, यू नीड टू स्लो डाउन. आज क्या अभी कुछ ये हम दोनों क्या बस की बात. ओके, देखिए गौर से सुनिए. अब अगर मैं एक यूनिट ज्यादा करता हूं
तो यहाँ पर 500 रुपए ज्यादा होते हैं, 500 ज्यादा होते हैं लेकिन उसमें से 300 चले जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ 200 रुपए ज्यादा होगा, 80,200। तो आपके प्रॉफिट में 200 रुपए ज्यादा होगा। इससे पहले तक प्रॉफिट कितना था? 0। अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 200। सो दैट मींस that means after every additional unit sold after your break even, your profit will increase by the amount of the contribution margin Per per unit contribution. 200. Okay, so pause करें इसको and we are taking pay attention class. So this is what we were saying before the namaz break. This is what we were saying कि आपके पास जो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, that is an important figure. Why? Because this will tell me about my break even. I can find out the break even quantity by dividing my fixed cost by the contribution margin per unit. So that means break even quantity can be found by dividing fixed cost by contribution margin per unit. इसी तरह था ना? तो हमने एक फॉर्मूला हमने सीख लिया, ठीक है? आगे जाके इस फॉर्मूला को देख लेंगे इन डिटेल. So this is the first thing. Second, then we said if we sell an additional unit above the break even unit से आगे अगर आप एक additional unit sell करेंगे, so your net income would increase by the amount of the contribution margin per unit. जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है उतना आपका इंक्रीज होगा नेट इनकम. सही? अब अगर मैं आपसे कहूं कि 401 की बजाय मेक इट 537, व्हाट विल बी माय नेट इनकम? इफ आई एम सेलिंग 537 bicycles, what is my net income? जी उसामा, 200 multiplied by 537, would that be my net income? No. Net income 27,400. And how did you find out, Shazib? किसको मल्टीप्लाई किया? इसको 200 से मल्टीप्लाई किया, और फिर माइनस 80,000 किया. तो एक और काम क्यों नहीं करते यार? हाँ, एक और काम क्यों नहीं करते? 537 आप सेल कर रहे हैं, आपको पता है कि ब्रेक इवन कितना है? 400. उसको इसमें से हटा दें, माइनस 400, कितने बच गए? 137. 137 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें 200 से, दिस विल गिव यू. आसान तरीका. तो इसका मतलब यह है कि इफ आई नो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, आई कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड आई कैन डू इट क्विकली. आई कैन डू लॉट्स ऑफ एनालिसिस, और मैं बड़ी जल्दी एनालिसिस कर सकता हूँ. मैं सिर्फ उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को मल्टीप्लाई करूँ, चीज़ों से डिवाइड करूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चल सकता है. दैट मीन्स इट इज़ अ यूजफुल टूल. ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट का फिगर है, दिस इज़ अ यूजफुल टूल. ओके, कंट्रीब्यूशन अप्रोच. वी डू नॉट नीड टू प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट टू एस्टिमेट प्रॉफिट्स एट अ पर्टिकुलर सेल्स वॉल्यूम. अब देखें, मैंने आपसे कहा 537, क्या आपने इस 537 के लिए पूरी इनकम स्टेटमेंट बना के दी मुझे? नहीं. All you did was multiply the contribution margin per unit with the number of bicycles above the break even, और आपको आपका नेट इनकम पता चल गया. तो इसका मतलब ये है कि वो जो इतनी बड़ी बड़ी इनकम स्टेटमेंट्स बनानी है, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. आपको एनालिसिस के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, एंड यू कैन फाइंड आउट द फिगर्स. Simply multiply the number of units sold above break even by the contribution margin per unit. If you develop equations to calculate break even and net income, you will not have to prepare an income statement to determine what net income will be at any level of sales. So that means I can do wonders. If I'm in a meeting and I'm trying to decide कि करना क्या है, और मुझे मेरा बॉस के इतना इनकम कमा के दे मुझे, तो मैं उसी वक्त कैलकुलेशन कर सकता हूँ कि कितनी सेल्स करूँगा, कितने यूनिट्स बेचूंगा, तो इतनी इनकम कमा सकता हूँ. लेकिन तब if I have the figures for variable cost, fixed cost, contribution margin per unit. So these figures are important. तो contribution margin per unit बहुत important figure है. Clear. अब आते हैं CVP की तरफ, ठीक है? Now let's move on to CVP. अब CVP क्या है? अब सेम एग्जाम्पल जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी, सेम एग्जाम्पल लेते हैं और डिफरेंट डेटा लेते हैं. Let's say the units are 300 now.
300 यूनिट बेचे, 300 यूनिट बेचे तो पर यूनिट आपका सेलिंग प्राइस कितना था? 500. सो 300 into 500 150,000. ओके. वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट कितने? 300 into 300 90,000. 150 minus 90 60,000. और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट 200 को मल्टीप्लाई कर दूं 300 के साथ, आई कैन गेट दिस फिगर डायरेक्टली. तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये भी बनाने की जरूरत नहीं है. सही. ओके, आगे चलें. 60,000 फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी थी? 80,000. माइनस करें, दैट मीन्स आई एम एट अ लॉस ऑफ 20,000. ठीक है. जब 300 यूनिट बनाऊंगा तो आई विल बी एट अ लॉस ऑफ 30,000. लेट्स मूव ऑन. हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर 400 यूनिट बनाऊंगा सो आई विल बी एट अ ब्रेक इवन. ये ब्रेक इवन आ गया. और अगर इससे ज्यादा बनाऊंगा तो प्रॉफिट होगा. लेट्स से 500 बनाऊंगा तो 5 into 5 इक्वल्स 250,000. 300 into 500 150, 100 80 20. ये हमने जो बिल्कुल पहली स्लाइड देखी थी वो ये डेटा था. सो नाउ यू हैव 3 डिफरेंट लेवल्स. अब मुझे 3 डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स नजर आ गए जब मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स को चेंज किया. इज दिस थिंग क्लियर? 3 डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स क्लियर हैं. 3 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी क्लियर हैं. ओके, आगे चलते हैं. इन अ सीवीपी ग्राफ यूनिट वॉल्यूम इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड ऑन दी एक्स एक्सिस. अब ग्राफ थोड़ा बहुत आइडिया हो गया ना? ओके. एक्स एक्सिस पे क्या चीज होती है? क्या चीज होती है? इंडिपेंडेंट. दिस इज द आंसर. इंडिपेंडेंट. ओके, इंडिपेंडेंट. अब यहां पर देखें, यहां पर हम यूनिट्स को देख रहे हैं अगेंस्ट कॉस्ट. तो यूनिट्स ज्यादा या कम होते हैं तो कॉस्ट ज्यादा या कम होती है ना. तो यूनिट्स किस जगह पे आने चाहिए? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस. आ गए यूनिट्स. ठीक. 100 से शुरू कर लिया. 100 200 300 400 5 6 7 8. इस तरफ लिख दिए अमाउंट या डॉलर्स. अब देखें, कॉस्ट भी डॉलर्स में आती है, सेल्स भी डॉलर में आती है, प्रॉफिट भी डॉलर में है. तीनों चीजें डॉलर्स में. तो मैं इन तीनों के ग्राफ यहां पे बना सकता हूं. आई कैन मेक ग्राफ फॉर ऑल 3. यस यस. ओके. फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन. और यहां पर किस पॉइंट पे होगा? फिक्स कॉस्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट कहां पर होगा? 80,000. 80,000. वजिया सेज 80,000. थोड़ी देर पहले आपको याद है तो हमने ये सारा डेटा देखा और यहां पे फिक्स कॉस्ट कितना है? 80. तो इसका मतलब कि इस ग्राफ पे अगर आपने फिक्स कॉस्ट बनाना है तो 80,000 पे यू विल मेक अ स्ट्रेट लाइन. किधर गया? तो ये तो 50 से भी नीचे है. ये धोखा हो गया है. ये 80,000 है. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. 80,000 एट 80. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक ग्राफ दूं एग्जाम में और आपसे कहूं, एक दो स्कैटर ग्राफ दूंगा ना कि इसके ऊपर स्कैटर ग्राफ बनाएं, वो भी आप बना देंगे. और एक अगर आपसे ये कहूं कि सीवीपी का ग्राफ दूं और आपसे कहूं फिक्स कॉस्ट इस पे बना कर दें, तो आपने किस जगह पर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनानी है? जहां पर फिक्स कॉस्ट हो. यानी यहां पर ये फिगर होना चाहिए 80,000 और यहां पर आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे. व्हाई? बिकॉज एट 300 यूनिट्स फिक्स कॉस्ट इज 80, 400 80, 500 80. फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद इन द रेलेवेंट रेंज. याद है? ओके, ये बात भी हो गई. अब वापस जाएं. अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं एक्सपेंसेस का, ठीक है, एक्सपेंसेस का, टोटल एक्सपेंसेस का. एक्सपेंसेस 2 किस्म के हैं, वेरिएबल, फिक्स्ड और टोटल. एक्चुअली 3 किस्म के. और हमें पता है कि टोटल एक्सपेंसेस या टोटल कॉस्ट इक्वल्स फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. इसी तरह होता है ना? ठीक है, इसी तरह है. या हमने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा y इक्वल्स a प्लस बी एक्स, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट प्लस मिक्स कॉस्ट इक्वल्स. तो हमने उस वक्त भी कहा था कि मिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं. ठीक है. तो अगर किसी क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट का वर्ड है तो भी सही है, मिक्स कॉस्ट का वर्ड है तो भी सही है. ओके, ये क्लियर हो गया. फिक्स कॉस्ट हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल कॉस्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट मिक्स कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट को देखें. स्टार्ट फ्रॉम 90,000, 120,000, 150,000. ठीक है. लेकिन
अगर नंबर ऑफ यूनिट्स में 0 कर दूं, सो व्हाट विल बी माय वेरिएबल एक्सपेंस? Variable expense, not fixed. 90,000. Variable expense. If, think over it. If my number of units are 0, what will be my variable cost? सर वो तो आएगी, बिल तो आएगी। जो बिल आएगा तो उस कॉस्ट को क्या बोलता हूं फिर? फिक्स कॉस्ट। तो वो तो फिक्स्ड है। फिक्स तो मैं कह रहा हूं 80 है। मैं कह रहा हूं अगर एक्टिविटी 0 हो, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड 0 हो, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? सो योर वेरिएबल कॉस्ट वुड बी 0। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग अगेन। इसका मतलब कि अगर वेरिएबल कॉस्ट बनाना है तो वो स्टार्ट होगा 0 0 0 0 यहां से, सही? ओके, और 300 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका? 300 यूनिट्स पे आपका वेरिएबल कॉस्ट है 90,000। सो at 300 units it's supposed to be 90,000। ये 80 है, ये 100 है, इसके दरमियान 90 ये आ गया। और फिर इस तरह 400 पे कितना होना चाहिए? 300 पर यूनिट है ना। सो 300 इंटू 400 120, ये आ गया 100, समझे? ये 100 आ गया, ये 150 है, तो 120 विल बी 10 20 30 40 ना 10 20 30 40 50, so 20 would be somewhere over here। ठीक है, रफ बना रहा हूं। ओके, सो दैट मींस वेरिएबल कॉस्ट का कर्व इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, सही है? ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब मूव करें टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का कर्व कितना होना चाहिए? लेट्स गो बैक टू द डेटा अगेन। जब 300 हो तो टोटल कॉस्ट कितनी होती है? 90 प्लस 80 इक्वल्स 170। यहां पर 2, यहां पर 230, सही है? अच्छा, अब देखें, गौर से देखें क्लास। सो दैट मीन्स माई फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कर्व, when I would start my total cost curve, लेकिन वो 0 से स्टार्ट करता हूं लेट से, तो अगर नंबर ऑफ यूनिट 0 हो जाएं तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट इक्वल्स 80 प्लस 0 इक्वल्स 80। इसका मतलब टोटल कॉस्ट कर्व स्टार्ट होगा यहां से, फिक्स्ड कॉस्ट से। अब गौर से सुने, वेरिएबल कॉस्ट कर्व वुड स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व वुड स्टार्ट फ्रॉम फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कर्व वुड ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन यहां से फिक्स्ड कॉस्ट कर्व वुड गो स्ट्रेट, वेयर एज टोटल कॉस्ट कर्व वुड बी अ अपवर्ड लाइन, सही है? पहला 170,000 एट 300, सो 150, ये 150 है, 150 और इससे ऊपर 170 लेट से ये है। 400 पे इट विल बी 200, ठीक? सो दिस इज 200, ये आ गया। एट 500 इट इज 230, सो 2 1 2 3, सो इट इज समवेयर, दिस इज माय टोटल कॉस्ट। ये भी बन गया, टोटल कॉस्ट का भी बन गया। नाउ तो आपने जो नमाज ब्रेक ली उसको मैं कहां पे एडजस्ट करूं? नहीं, हर रोज तो हम नहीं करते। अच्छा, 1-2 मिनट और पढ़ते हैं, बस एकदम तो नहीं जा रही ना। मैं जब यहाँ से 2:30 निकलता हूँ तब भी बस जा रही होती है। बस एक लास्ट चीज कर लें एंड देन वी आर डन। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, एक कर्व रह गया, बस एक कर्व, रेवेन्यू कर्व। रेवेन्यू का कर्व रह गया एंड देन वी आर डन। रेवेन्यू कर्व, रेवेन्यू इज योर सेल्स। अगर नंबर ऑफ यूनिट 0 हो तो सेल्स कितनी होगी? 0। दैट मीन्स रेवेन्यू कर्व मस्ट स्टार्ट फ्रॉम 0, फ्रॉम ओरिजिन, यहां से स्टार्ट होगा। एक चीज। सेकेंड, हर एक यूनिट के साथ रेवेन्यू कर्व कितना इंक्रीज करेगा? हर एक यूनिट के साथ रेवेन्यू कर्व कितना इंक्रीज करेगा? 500, क्योंकि एक यूनिट 500 का बिकता है। सो लेट्स से अगर 100 यूनिट्स हों तो रेवेन्यू कितना होगा?
100 इंटू 500 इक्वल्स 50,000। ये लें 50,000, 100 ये लें, आ गया। 200 होगा तो 100,000, 100,000 ये लें, 300, 150 लाइन ये बन गई रेड लाइन। ये भी क्लियर? अब मैं सबको हटा रहा हूं ताकि आपको ये साफ नज़र आ जाए कि ये क्या क्या कर्व्स हैं। ये हमारे पास कर्व्स हैं, ठीक, जहां पर टोटल एक्सपेंस एंड टोटल सेल्स intersect, that point is called as break even. And if I want to find out the quantity, and if I want to find out the sales, 200,000, ठीक। और इस पॉइंट से नीचे का जो एरिया है, ये इन दोनों का डिफरेंस, यानी ये एक्सपेंस है और ये सेल्स है। अब ब्रेक इवन से नीचे सेल्स ज़्यादा होता है या एक्सपेंस ज़्यादा होता है? एक्सपेंस ज़्यादा होता है। सो दिस शेडेड एरिया इज योर लॉस। इस पॉइंट से ऊपर अगर आप देखें, सेल्स ऊपर चला गया है और एक्सपेंस नीचे है, सो दिस एरिया इज योर प्रॉफिट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज व्हाट यू विल बी टेस्टेड इन योर एग्जाम अप टिल स्लाइड नंबर 17। डन? स्लाइड नंबर 17, इस चैप्टर का स्लाइड नंबर 17 तक यू विल बी टेस्टेड इन योर एग्जाम। सीवीपी एनालिसिस आपका आएगा, इस जगह तक आएगा। गॉट द आइडिया क्लास? ओके, मिसबा, फहीम, वी आर लेफ्ट